Hi all, this lecture is for class 7th, chapter 8 body movements. As you know that Diwali has gone, a large number of days you was on holiday. Now we need to focus on our study and whatever the balance chapters are with us, we need to be complete. Two things are very important for you to maintain a timetable, which I have already told you. आपको समय का बहुत ध्यान रखना होगा. You prepare a proper timetable. Got up early in the morning. 6 to 7 hours study is important for you. आपको सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा, not only science, because you know that maths is also very tough for you, as well as Hindi is also very tough for you. So you need to focus on all the subject. So I will suggest you to prepare a timetable and go accordingly. Maintain your health and peace in the mind. For study, 3 things is required: time management, your health, and proper food. Now we go for this chapter, body movements. The chapter name is itself reflecting that what is the meaning of body movements. You can imagine that in whole day your body is moving. पूरे दिन में आप देखते होंगे कि your body used to have a movement. Sometimes you are moving your hands, sometimes you are moving your legs, sometimes you are moving your head. So movement is required in the body, and why it happened, that is the important thought to be discussed today. आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर ये जानेंगे कि बॉडी मूवमेंट क्यों ज़रूरी है, बॉडी मूवमेंट क्यों होता है, और बॉडी मूवमेंट अलग अलग स्पेसीज़ के अंदर कैसे कैसे होता है. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप छोटे क्लास में भी व्हेन यू वाज इन 5th, व्हेन यू वाज इन 6th और 4th, you should know the things, but in 7th we are going to have some more this thing, right? So first of all, the introduction part is there. Introduction part is there, जहाँ पे हमको बताया गया कि there are numerous functions, ठीक है, there are numerous functions a living organism performs to keep going in life. Some such functions include running, swimming, flying, gliding, and creeping. In this chapter, we will read in detail about movement and locomotion in animal. Our body parts also move in different ways when we walk. ठीक है, sit, kneel down, or do some work. We move our fingers and hands. We also move our arms, neck and leg every time. हम जब क्या होता है, घुटने के बल पे बैठ जाते हैं, हम दौड़ने लगते हैं, जंप करते हैं, whatever आप सीढ़ी पे चढ़ते हो, whatever you are doing your work, your body used to be movement. तो हम लोग ये चैप्टर के अंदर, एक मिनट, हाँ, let me close my net also so that we don't have any disturbance during our study. You also have a practice that when you are studying you don't have any disturbance. ठीक है, अगर घर में टीवी चल रहा हो तो you should go and sit in other rooms, right? मैं बीच बीच में आपको फोकस करता रहता हूँ. आई एम मेकिंग यू अलर्ट एट सिटिंग योर होम. यू शुड बी अलर्ट इनफ वाइल स्टडिंग, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर यू टू स्टडी. ठीक है, आपके लिए 3 ही चीज़ ज़रूरी है: स्टडी करना, फूड, कीप योर हेल्थ फिट. ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि वो वर्किंग होल डे फॉर योर होम, यू आर रनिंग योर शॉप, यू आर गोइंग टू ऑफिस, नो एल्स. टिल द स्कूल शुड नॉट ओपन. आपको घर में रूटीन मेंटेन करना है, आपको प्रॉपर प्लेस पे पढ़ाई करनी है, और आपके हेल्थ को अच्छा रखना है, और चीज़ों को अच्छे से समझना है. समझ में नहीं आता है तो कंसर्न टीचर को आपको फ़ोन करना है. ठीक है, समझ में आ गई बात? आ गई. चलो हम लोग बॉडी मूवमेंट्स देखते हैं. तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ रिलेटेड टू आवर इंटायर बॉडी फंक्शन. तो जैसे हम दौड़ते हैं, जंप लगाते हैं, बैठते हैं, फॉर दैट वी रिक्वायर्ड आवर बॉडी मूवमेंट्स. अब अगर हमको दौड़ लगाना है, यू वांट टू रन, द हाउ यू रन? विदाउट हेल्प ऑफ योर बॉडी मूवमेंट्स यू कांट रन. आप ऐसे चुपचाप खड़े रहोगे तो यू कांट रन. वंस यू स्टार्ट मेकिंग योर बॉडी, जैसे आप पैर को ऐसे ऐसे बढ़ाते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड योर बॉडी मूवमेंट. ठीक है,
अब मैं आपको बॉडी मूवमेंट समझा दिया। द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, अभी देखो ये ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है सेंटेंस, आपको ये लर्न करना है, ठीक है। आपको साइंस में समझना भी है और लर्न भी करना है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि यू आर नॉट सपोज टू हैव योर ओन वर्ड इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। अभी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज लोकोमोशन, या आपको फिल इन द ब्लैंक आएगा। तो द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। जब तक आपकी बॉडी में लोकोमोशन नहीं आएगा, लोकोमोशन कैसे आएगा, जब आपका बॉडी मूवमेंट्स में आएगा। तो प्लांट आर मोस्टली फिक्स टू द ग्राउंड, प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स आर मोस्टली फिक्स टू द ग्राउंड, सो दे डू नॉट शो लोकोमोशन। अब प्लांट क्या होता है, वो एक ही जगह पे होता है, तो वो थोड़ी आपको लोकोमोशन बताएगा। लोकोमोशन तो उसको बोलते हैं जहाँ पे कि हमारे बॉडी का मूवमेंट हो रहा हो। सो दे डू नॉट शो लोकोमोशन। एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दे हैव द पावर ऑफ लोकोमोशन। अब एनिमल में क्या होता है, जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा दौड़ता रहता है, टक 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 टक, हैं, देखा है घोड़े को दौड़ते हुए। अब जैसे एनिमल्स शो लोकोमोशन इन फॉर्म ऑफ वॉकिंग इन, स्विमिंग है एंड फ्लाइंग है। तो लोकोमोशन हेल्प्स एनिमल इन सर्वल वेज। अब लोकोमोशन एनिमल्स को कैसे हेल्प करता है, प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम देयर एनिमीज एंड प्रेडेटर्स। अब जैसे मान लो हिरन है, उसको शेर खाने के लिए दौड़ता है, तो हिरन क्या करता है, दौड़ लगाता है, भागता है, तो क्या होता है, लोकोमोशन इज हेल्पिंग। व्हाट इज लोकोमोशन, लोकोमोशन इज ए मूवमेंट ऑफ बॉडी, जहाँ पे कि पूरे होल बॉडी का ऑर्गेनिज्म जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस चला जाता है। ये सब साइंस का वर्ड है, इसको तुमको ध्यान बैठाना पड़ेगा। ऑर्गेनिज्म, इंटायर बॉडी ऑर्गेनिज्म इज इन मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। अब प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम देयर एनिमीज एंड प्रेडेटर्स। अब क्या है, तुम जानवर को मारने के लिए जाओगे, सपोज डॉग है, उसको तुम मारने के लिए जाओगे, तो क्या होता है, डॉग तेजी से भागता है, तो उसको लोकोमोशन हेल्प करता है उसको बचने के लिए, मार से बचने के लिए। तो मार दोगे, सपोज कोई डॉग जा रहा है, तुमने हाथ में पत्थर ले लिया, उसको मार रहे हो, तब जब मारोगे उसको तो क्या होता है, इज ट्राइंग टू रन अवे, फाइंड देयर फूड एंड वाटर। अभी पानी पीना है, तो अब एनिमल को क्या है, अगर आपने घर के पास पानी दोगे पीने के लिए, तो भी उसको वहाँ से चल के आना पड़ेगा पानी पीने के लिए। या सपोज कहीं पे जंगल में वो है, उसको प्यास लग गई, तो दौड़ दौड़ के जाके कहीं पे जाएगा पानी पीने के लिए और खाना खाने के लिए। अब एनिमल तो खाना खुद बनाता नहीं है, प्लांट है तो अपना खाना खुद बना लेता है, खा लेता है। इंसान है तो अपना खाना खुद बना लेता है और खा लेता है। पर एनिमल का क्या होता है, दे आर इन सर्च ऑफ फूड। अभी इस घर में कुछ खाना मिल गया, अभी उस खाना मिल गया है, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ डॉग, ठीक है। फाइंड सुटेबल प्लेसेस फ्रॉम लेइंग एग्स और रियरिंग देयर यंग गर्ल्स। अब उनको कैसा है कि अपने बच्चों को लाना होता है, ठीक है, अंडे देने होते हैं। तो जैसे डॉग को देखो, अब क्या होता है, वो कोई ना कोई जगह ढूंढती है जहाँ पे कि वो अपने बच्चे को बर्थ देती है, ठीक है। मूव फ्रॉम एन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट टू ए फेवरेबल इन्वायरमेंट। बिफोर वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल, लेट अस सी द स्केलेटल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। अब इतना सारा जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे अच्छा है कि हम लोगों को अब ये समझना है अबाउट आवर स्केलेटल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हाँ, 1 सेकेंड में थोड़ा सा फैन है ना। नाउ अभी क्या, तो ठंड बढ़ गई है, यू ऑल्सो टेक केयर अबाउट योर बॉडी एंड फिटनेस एंड हेल्थ, सो दैट आपको क्या है, कफ, कोल्ड और फीवर, इन सभी चीज़ों से भी बचना होगा। तो टेक केयर अबाउट योर हेल्थ। ऑर्गन्स, अब देखो ऑर्गन्स के बारे में समझना है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, पर जो मेन ऑर्गन्स है वही हम स्टडी करेंगे। और बॉडी इज मेड अप ऑफ ए न्यूक्लियर नंबर ऑफ ऑर्गन्स। ये ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन स्टैंडर्ड 5th, जहाँ पे कि हमारा जो टिश्यू है वो सेल से बनता है और टिश्यू से हमारे बॉडी का मसल्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फैट टिश्यू है, मसल टिश्यू है, स्टोमक है, फूड पाइप है, स्मॉल इंस्टाइन है, आर ऑल ऑर्गन्स, ठीक है। दीज आर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो हमारे पास क्या था, बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे आएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से आते हैं,
स्टोमक है, फूड पाइप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान से दिखेगा, ठीक है। ये सब फोटोग्राफ्स आपको ध्यान से देखने हैं। द हार्ट पम्प्स ब्लड, इट मेड मोस्टली ऑफ मसल्स टिश्यू विद सम ब्लड टिश्यू एंड फैट टिश्यू। हमारे बॉडी में कैसा होता है कि फैट टिश्यू है, मसल टिश्यू है, बोन टिश्यू है, ये सब का फंक्शन है। देखो नाउ यू आर इन 7th क्लास, तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझना है। व्हेन यू गो फॉर ए हायर क्लासेस और व्हेन यू गो फॉर द मेडिकल साइंस, तो यू विल नो ऑल थिंग्स इन डिटेल। वहाँ पे कैसा होता है कि अगर आप सिर्फ गले के ऊपर का MBBS बनोगे तो गले के ऊपर का स्टडी करना होगा, नेक का करना पड़ेगा, चेस्ट का करना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स भी जो है ना वो सब अलग अलग हो। जैसे आपने देखा होगा कि वो डॉक्टर सिर्फ आँख देखता है, वो डॉक्टर सिर्फ मगज देखता है, वो डॉक्टर क्या होता है कि सांस का प्रॉब्लम होता है वो देखता है। तो क्या है, हमारा इंटायर बॉडी जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड टू कीप इट फिट। यहाँ पे आ जाओ। द ईयर्स, आइज, नोज, टंग, स्किन आर सेंस ऑर्गन। अब जैसे आपका कान है, आँख है, नाक है, टंग है, स्किन है, ये सब हमारे जो होते हैं क्या कहलाते हैं, इनको सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे मान लो गुलाब है, रोज़ है, रोज़ को आप ऐसे सूंघोगे तो आपको क्या है, अगर आपका नोज़ प्रॉपर काम कर रहा है तो सूंघने में आएगा। कोई अच्छा खाना बन रहा है उसकी खुशबू, ठीक है। तो आपने देखा होगा समटाइम्स व्हेन यू आर सफरिंग विथ कफ एंड कोल्ड तो उसकी खुशबू नहीं आती है, दैट मीन्स दैट ऑर्गन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जैसे आपका कान है, अब कान से सुनाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स दैट ऑर्गन इज़ नॉट प्रॉपरली। किसी कान के पास बहुत ज़ोर से चिल्लाओगे तो वो नहीं सुनाई देता है, ठीक है। तो दीज ऑर्गन्स आर सेंस ऑर्गन्स। तो यहाँ पे देखो ये फोटोग्राफ्स है, एवरीवन हैज़ टू सी इन योर बुक्स। मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर पा रहा हूँ पर फिर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो स्कल है, सबसे ऊपर देखो स्कल है, उसके बाद है मैक्सिला, मैक्सिला, फिर है मैंडिबल, केविक, स्टर्नर, हर, रीव्स। इसमें देखो सारे पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं, वो सब आपको क्या है बहुत अच्छे से देखना है। देखो हाफ ऑफ द बॉडी इज रिफ्लेक्टिंग, बोन का पार्ट आपको दिखाया गया है, ठीक है, बोन का पार्ट दिखाया गया है। आप सबको बोन का पार्ट अच्छे से देखना है। ऑर्गन्स में एक्सटर्नल और इंटरनल, द ऑर्गन्स डिस्क्राइब्ड अबव लाइक द स्टोमक, हार्ट, किडनी, स्पाइन आर इंटरनल ऑर्गन्स, आई, ईयर, आर्म्स, लेग, हैंड एंड फीट आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब इसमें क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम, अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको बता रहा हूँ, एंड एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू दिस। ये आप लर्न करना पड़ेगा आपको। रीज़न क्या है कि ये आपको इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और आपको वैसे भी जानना चाहिए ये चीज़। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स डू इम्पोर्टेंट जॉब्स बट दे डू नॉट वर्क एलोन, ठीक है। ऑर्गन्स अपना काम करता है पर क्या है वो अकेला काम नहीं कर सकता है। यूजुअली सेवरल ऑर्गन्स टीम up and work together to carry out a certain life function. A group of organs working together is called an organ system. पूरा ग्रुप मिलके जो काम करता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। द ऑर्गन सिस्टम एंड देयर ऑर्गन्स। अब ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे बड़े अच्छे से बताया गया है, एंड यू नीड टू प्रिपेयर एंड राइट इन फेयर बुक, ठीक है, तभी आपको अंडरस्टैंड होगा ये। व्हेन यू राइट एनीथिंग, व्हेन यू स्टडी एनीथिंग, व्हेन यू लर्न एनीथिंग, मैं आपको बता दूं कि दिस प्रैक्टिस यू हैव टू डू इट, और एनी टाइम आई एम गोइंग टू हैव ए कॉल विथ यू ऑन व्हाट्सअप कॉलिंग, ठीक है, एंड आई विल आस्क व्हाट हाउ योर स्टडी इज गोइंग ऑन, व्हाट आर द चैप्टर्स यू हैव कवर्ड, एंड आई विल आस्क यू क्वेश्चंस और रिलेटेड टू योर सिलेबस ऑल्सो। तो आपको क्या है कि यू हैव टू स्टडी इन योर हाउस, राइट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, हार्ट है, ब्लड है और वेसल्स है। ये ध्यान रखना आपको, क्या है ये बहुत अच्छे से समझना है। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन, स्पाइनल कोड, ठीक है, ब्रेन किसको बोलेंगे, हमारे सर को। स्पाइनल कोड मैंने बताया था आपको, रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। नर्व्स, नर्व्स पता है ये मगज के अंदर होता है। सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं आपके, जितने भी सेंस ऑर्गन है, कान है, नाक है, आँख है, मुंह है, दीज आर द सेंस ऑर्गन्स। एक्सक्रेटरी सिस्टम, जैसे किडनी है, स्किन है, यूरिनरी ब्लैडर है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो आपके बॉडी से जो इम्प्योरिटीज़ है उसको बाहर निकालते हैं वो लोग, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब हुआ हमारे ऐसे सिस्टम जो जेनेटिक सिस्टम है, जिनसे कि बर्थ होता है, ठीक है, लाइक ब्रिगेड्स लाइक, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे क्या है, फीमेल में ओवेरिटीज होता है और मेल में टेस्टिल्स होते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, अब खाना हम खाते हैं, पचेगा कैसे, ठीक है। तो बॉडी में क्या हर चीज़ों का काम है, बॉडी में हर चीज़ों का काम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे माउथ है, फूड पाइप है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब आपसे कोई पूछेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है, तब आप बोल दोगे हार्ट, ब्लड, तो दैट इज़ रॉन्ग। इसलिए मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है, फूड पाइप है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये आपको पूरा रट्टा मारना पड़ेगा, दिस नो ऑप्शन एट ऑल। रिस्पिरेटरी सिस्टम है, अब रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हम सांस लेते थे, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी। तो क्या है, नोज है, माउथ है, विंड पाइप है, लंग्स है। आपसे कोई पूछेगा, देयर इज ए कन्फ्यूजन, कि आपसे कोई पूछेगा कि भाई नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं, तब उसमें क्या है, आप सोचोगे अरे माउथ है, नहीं है। आपको ये कंफर्म करना होगा एंड यू हैव टू स्टडी, देयर इज नो ऑप्शन एल्स। चलो आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या है, यानी हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स हैं उनके बारे में हमको स्टडी करना है। पर क्या है कि 7th क्लास में वी हैव सम लिमिटेड स्टडी ऑन दिस, लेकिन जो है वो हमको समझना है कि क्या है। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज विच सपोर्ट द बॉडी ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन इज कॉल्ड ए स्केलेटल सिस्टम। अब आपसे फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, MCQ में आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है। तो आपको यही समझना है कि फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज विच सपोर्ट द बॉडी ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। यानी हमारी बॉडी को जो सब चीज़ें खड़े होने में मदद करती है, नर्वस सिस्टम है, सॉरी ये जो भी आपका जो बोन है और कार्टिलेज है, ठीक है। बोन तो समझ में आ ही रहा है सबको, कार्टिलेज है, कार्टिलेज जो हमारे बोन को ज्वाइंट करते हैं सब जगह से, ठीक है। जैसे कान है आपका, तो कान क्या है, यू आर हैविंग ए कार्टिलेज हियर। कार्टिलेज क्या होता है कि मिडिल काइंड ऑफ बोन्स होते हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो आपके बॉडी को बोन और कार्टिलेज जो मिलके सपोर्ट करके खड़ा करता है, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। An adult has 206 bones, but a child has more than 300 bones. अब जो छोटा बच्चा होता है ना उसको 300 बोन्स होते हैं, पर धीरे धीरे क्या है वो बोन्स ज्वाइंट होते जाते हैं और फिर बड़ा बोन हो जाता है। तो उस वजह से फिर नंबर ऑफ बोन्स जब आप बड़े होते हो तो कम हो जाते हैं, दैट इज़ 206। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा कि छोटे बच्चों का 300 बोन होता है, और जब बड़े होते हैं हम, व्हेन यू बिकम्स एडल्ट, यानी राइट नाउ यू आर हैविंग 206 बोन्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि द एंड ऑफ ईच बोन इज कवर्ड बाय स्मूथ एंड स्केली सब्सटेंसेस लाइक कार्टिलेज। मैंने आपको बताया ना, कार्टिलेज इज द बोन्स विच इज कनेक्टेड टू द हार्ड बोन्स। और बॉडी आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड्स कॉल्ड लिगामेंट। अब ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दीज टिश्यूज प्रिवेंट द बोन्स फ्रॉम being decorated or from exceeding beyond their proper range of movement. The skeletal system performs 4 main functions, ठीक है। प्रोटेक्शन है, ठीक है। The skeleton protect the declinated internal organs of our body. The brain is protected by the skull, the heart and lungs by thin long bone in our chest called the ribs. अब रिब्स का मैंने फोटोग्राफ्स में आप लोगों को बोला था, यू हैव टू मेक ए प्रैक्टिस, बिकॉज क्या है कि अभी प्रोटेक्शन है, तो प्रोटेक्शन कहाँ से होगा, जो रिब केस है, जो रिब के बोन्स हैं, इट इज़ इन 5th क्लास ऑल्सो, 6th ऑल्सो, 7th ऑल्सो। तो अभी आपको ये सब चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। नाउ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। Support. Our body has a number of soft organs and muscles. It is necessary to have a hard frame to support these parts, otherwise the body will collapse. Our skeleton provides framework and hold us upright. A movement है, our skeleton has movable joints between various bones which allow the muscles to move the head, shoulders, arms, legs and other part of the body. Making blood cells, सबको पता है ब्लड सेल, ठीक है। RBC, WBC, राइट ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स, these are the
इन्वॉल्व इन ब्लड सेल। तो और जब पता है वाइट ब्लड कार्पस्कल्स ज़्यादा हो जाएंगे और रेड ब्लड कार्पस्कल्स कम हो जाएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। बोन्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इन द इनसाइड द बोन्स कंटेन सॉफ्ट सब्सटेंसेस कॉल्ड द बोन मैरो। जो बोन होता है हमारा बोन, उसके अंदर है ना, आपने किसी की टूटी हुई हड्डी देखी होगी, जब डॉक्टर्स उसको प्लास्टर्स करता है तो इनसाइड द बोन देयर इज ए सॉफ्ट, जैसे रुई होता है, स्पंज होता है, आई एम गिविंग द प्रॉपर एग्जांपल ऑफ स्पंज, उस टाइप के जो होते हैं ना वो अंदर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बोन मैरो। कई बार आपने सुना होगा कि किसी की हड्डी टूट गई तो उसके बाद डॉक्टर, या हड्डी में कोई इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर क्या करता है, उसको एक बोलता है कि आप बोन मैरो टेस्ट करवाओ। बोन मैरो टेस्ट होने से क्या है, ये पता चल जाता है कि अगर हड्डी में कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। कई लोगों को जिनको बोन कैंसर होता है उनके लिए मैंडेट होता है बोन मैरो टेस्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ स्केलेटन। जिससे क्या होता है, कोई बॉडी का पार्ट है, हड्डी है, बार बार दुखे जा रहा है, मे बी सम टाइम यू हर्ट ऑन दैट प्लेस, और बाद में थोड़ा ठीक हो गया फिर दुखता है, फिर ठीक हो गया फिर दुखता है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद द बोन, ठीक है। अब पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यार, बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, आप लोग मज़े लेके पढ़ो, ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ो यार, पढ़ाई में बहुत मन लगाओ। मेरी तो बहुत इच्छा होती है कि आप सब अच्छे से पढ़ो, है ना। आई एम वेटिंग फॉर व्हेन द स्कूल विल बी ओपन, बट नो डाउट एट ऑल, आप मेरे से मिल सकते हो, फ़ोन पे बातें कर सकते हो, पूछ सकते हो। आई नेवर से एनीथिंग टू यू, एनी टाइम यू कैन। और अगर बिजी हैं तो आप व्हाट्सअप कर दो मेरे को, सर आई वांट टू डिस्कस विथ यू, और अच्छे से बातें करो, पूछो। यू डोंट ट्राई टू हाइड कि आप 7th में आ गए आपको ये नहीं आता है, ये आपको कभी नहीं सोचना है। आप 7th में आ गए हो, आपको नहीं आता है, ये नहीं सोचना है। नहीं आता है कोई बात नहीं, हम फिर से सीखेंगे, ठीक है। जिस दिन जग गए उस दिन से ही आपका सवेरा हो जाएगा, सोए रहोगे तो सवेरा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मेक ए टाइम टेबल, ठीक है, एंड बी इन डिसिप्लिन इन हाउस। मैंने कई बच्चों का देखा कि किसी के हाथ में चोट लग गया, पैर में चोट लग गया, सर में चोट लग गया। आप कोई भी आउटडोर गेम खेलते हो, स्केलेटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर आपको चोट लग गया, हर्ट हो गया तो यू गेट डैमेज, सो प्ले बट इन ए सेफ वे, ठीक है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो तो यू शुड बी केयरफुल कि बॉल आपके आँखों में नहीं लग जाए, नाकों में नहीं लग जाए, बिकॉज दीज आर द सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो पार्ट ऑफ स्केलेटन, द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल। अब देखो ये क्या है, बार बार इसको रीड करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, ये बड़े अच्छे से ध्यान से देखना। अब आप बड़े हो गए हो इसलिए आप डरोगे नहीं, छोटे बच्चे तो ये देख के डर जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, देखो ये देखो ये पता है, ये एक ऐसा स्केलेटन है जिसमें से हाथों को दिखाया गया है, मतलब क्या से मूवमेंट एंड ऑल। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारे बॉडी का ये स्केलेटन सिस्टम है, इसी के ऊपर हमारा बॉडी टिका हुआ है। यहाँ पे देखो स्कल है, फिक्स जॉइंट है ना, वर्टिब्रा है, गले के पास वर्टिब्रा है। तो अब आपको क्या करना है, इट विल टेक 30 मिनट्स टाइम और 1 आवर। ये स्केलेटन का फोटोग्राफ्स आप अच्छे से बनाओ, ठीक है। आप जब अच्छे से बनाओगे आपके फेयरबुक में, तो आपको पता चलेगा कि बॉडी का कौन सा पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं। कई बच्चों को मैं डायग्राम बोलता हूँ तो डायग्राम बना लिया पर पार्ट्स का नाम नहीं लिखते हैं। अब पार्ट्स का नाम हमने डायग्राम क्यों दिया आपको बनाने के लिए, आई हैव गिवन यू द डायग्राम टू प्रिपेयर, कि आप उसमें पार्ट्स का नाम लिखोगे, पार्ट्स का नाम नहीं लिखते हो तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेकिंग द डायग्राम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायग्राम अच्छे से बनाना है। और डायग्राम बना के देखो अच्छा बन रहा है कि खराब बन रहा है, देयर इज़ नो लिमिट टू डिटेक्ट, पर समझ में आना चाहिए। स्कल है तो स्कल आपने बनाया है, स्कल की जगह पे कुछ और बना दोगे तो इट्स ए लाफिंग स्टेज, लोग हंसेंगे देख कर, क्या बनाया यार, तो क्या बनाया यार। आपको हम ऐसा नहीं बोल रहे सेम टू सेम कॉपी बनानी है, पर आपको कोशिश करना है बनाने का। इट विल टेक टाइम बट यू शुड लर्न। ये डायग्राम जब आप बनाओगे तो इसमें सारे पार्ट्स का आप नाम लिखोगे, रीब लिखोगे, देखो यहाँ पे रीब लिखा हुआ है, मैं जो आपको बता रहा था। वो कई सारी चीज़ें हैं जो आप करोगे तब समझ में आएगा, नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। ऑल द टाइम्स यू बिजी इन मोबाइल तो कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो आता है, वीडियो देख लो, उसके बाद मोबाइल रख दो। अब कोई क्वेश्चन है तो गूगल में सर्च कर रहे हैं। आई टेल यू दिस इज़ वेरी बैड हैबिट, बिकॉज गूगल विल नॉट गिव यू द करेक्ट आंसर एंड गूगल विल नॉट एक्सप्लेन यू, क्योंकि वो लॉगरिदम है। जो चीज़ आप एक बार सर्च करते हो वही चीज़ से रिलेटेड वो बार बार देता रहेगा आपको। तो डियर चिल्ड्रेन, दिस इज माई सजेशंस, प्लीज़ अवॉइड मोबाइल ऑपरेशंस। जब वीडियो आता है वीडियो देख लो, होमवर्क आता है होमवर्क देख लो, दैट विल बी इजी फॉर यू।
ठीक है। तो वीडियो रेगुलर देखो, नहीं समझ में आता है दोबारा देखो, रिवाइंड करो, फिर से लिखो, फिर से करो। आप एक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो। फिर भी नमज नहीं समझ में आता है तो यू कैन कॉल मी, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑन द फोन। फ़ोन ही नहीं आता है किसी का, एवरीवन इज़ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो ह्यूमरस है, अब ह्यूमरस को कहाँ पे लिखा है ह्यूमरस पेल्विस। अब देखो ये बैकबोन का पीछे का देखो यहाँ पे हिस्सा है, उसको बोलते हैं पेल्विस। अब ये सब जब जानोगे ना तो यू विल बी वेरी हैप्पी। देखो अल्ना है, ये जो हड्डी है यहाँ पे 2 हड्डी होती है, ठीक है, 2 बोन्स आर देयर। तो आगे वाले को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, और पीछे वाले को बोलते हैं अल्ना, ठीक है। ह्यूमरस, ये देखो ये ऊपर वाली हड्डी को बोलते हैं हम लोग ह्यूमरस। यहाँ पे देखो, जब आप देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड। पैर के देखो यहाँ पे फेबुला, ये जो घुटने से नीचे की हड्डी है यहाँ पे, यहाँ देखो फेबुला, ठीक है। हिंग जॉइंट, ये हमारे घुटने के जो जॉइंट है इनको बोलते हैं हम हिंग जॉइंट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट एवरीवन यू शुड प्रिपेयर द डायग्राम, ठीक है। अब मैं तो चाहूँगा कि ये डायग्राम आप बना के स्कूल के नंबर पे भेजो, बड़े नाइसली बनाओ। आई विल सी एंड आई विल गिव यू द थैंक यू वर्ड एंड एक्सेलेंट एंड गुड। आप इसको अच्छे से बनाओ एंड यू सेंड ऑन द स्कूल ग्रुप सो दैट दिस विल रिफ्लेक्ट वेदर you know this how to prepare or not. देखो स्कल, द स्कल इज मेड ऑफ 22 बोनी प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर। 22 बोनी प्लेट्स जो है ना वो ज्वाइंट टुगेदर। 22 जो बोनी प्लेट्स हैं, टोटल बोन्स कितने हैं 206, और 22 जो है ना बोनी प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर। और ब्रेन इज इनसाइड द स्कल, इट इज अपर पार्ट। द ब्रेन इज मेड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू विच कुड बी इजिली डैमेज विदाउट। ये सब स्कल के बारे में दिया हुआ है, आप इसे स्टडी कर लेना। देखो यहाँ लिखा है कि द बोन्स ऑफ स्कल फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग केज अराउंड द ब्रेन। इन दिस वे स्कल प्रोटेक्ट एंड ब्रेन। लोअर पार्ट ऑफ स्कल कंटेन द फेस, है ना, ठीक है। अब देखो ये बैकबोन है। अब देखो बैकबोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बैकबोन में क्या होता है मैं तुमको बताऊं कि चलो ध्यान देइए क्या आ जाता है यार। बैकबोन में देखो, द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। अब जैसे 206 बोन्स है तो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में नंबर ऑफ बोन्स को डिवाइड किया गया है। अब बैकबोन जो उसमें कितना है 33 स्मॉल बोन्स होते हैं। ये बैकबोन देखो, ये मैं फोटोग्राफ से बड़ा करता हूँ। देखो ये पीछे लिखा हुआ है बैकबोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों को देखो इसमें हड्डी में दर्द होता है, आप ज़्यादा देर बैठते हो तो प्रॉब्लम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, अदरवाइज़ क्या होगा, हम ऐसे झुके रहेंगे, ऐसे ढड़े रहेंगे, मेरे को दुखता है, ये है। तो कभी भी आपको क्या होता है कि जब आप बैठते हो तो यू सिट इन ए प्रॉपर जंक्शन, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको बैठना है। ये नहीं कि घर में सोफे पे ऐसे टेढ़े बैठ गए, बिस्तर पे लेटे हैं तो चेस्ट के बल सो गए, तो ऐसा नहीं करना है हमको जो बैठना है विद ए प्रॉपर वे, ठीक है। जैसे आपको स्कूल के असेंबली में बताया जाता है सिट स्ट्रेट, अच्छे से बैठो, हाँ। तो आपको क्या है, आपके बैकबोन का ध्यान रखना है। वर्टिब्रेट कार्टिलेज डिस, अब देखो ये मैंने कार्टिलेज जो आपको बताया था, ये कार्टिलेज के डिस्क होते हैं जो कि ज्वाइंट करते हैं हमारे। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। अब देखो इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स प्लेस्ड वन ओवर द अदर एंड आर कॉल्ड वर्टिब्रे। अब ये क्या होता है ना, वो एक दूसरे के ऊपर होते हैं बोन्स, पीछे रीढ़ की हड्डी जो होती है। जब आप खुद का हाथ पीछे ले जाओगे एंड यू चेक इट, जो दुबले पतले लोग होते हैं उनको तो बड़ा आसानी से दिख जाता है, पर जो मोटे होते हैं ना उनको नहीं दिखता रहता वो। तो दुबले पतले लोग ऐसे ऐसे हाथ से आप पीछे करोगे ना, मैं भी कर रहा हूँ, तो आपको क्या है वहाँ पे दिखेगा जो एक बोन दूसरे बोन से ज्वाइंट होता है। द बैकबोन इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ स्कल, इट फॉर्म्स द सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड ऑफ द स्केलेटन। द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन और द वर्टिब्रल कॉलम। ईच वर्टिब्रा हैज़ ए होल इन इट। द स्पाइनल कोड, अब ये सब क्या है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्पाइनल कोड क्या है, वर्टिब्रा क्या है, कार्टिलेज क्या है ना। हॉलो कैविटी ऑफ द बैकबोन, दस बैकबोन इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्ट एंड स्पाइनल कोड फ्रॉम द डैमेज। देखो हमारे डैमेज से बचाता है। द रिब, अब देखो दिस इज ऑल्सो वेरी, है तो सारा ही इंपॉर्टेंट पार्ट, पर हमको समझना है इसमें क्या है। देखो द रिब आर थीन फ्लैट कर्व्ड बोन दैट form a protective case around the organs in the super part of the body. This is called the rib cage.
It consists of 24 bones arranged in 12 pair. All of them are joined to the backbone at the back. Most of them are joined to the breastbone in front. The last two pair are not joined to the breastbone are called floating rib. ये देखो लास्ट में पीछे दो दिख रहा है आपको, देखो ये बड़ा करता हूँ मैं, देखो ये दोनों जो बड़े बड़े आप पीछे दिख रहे हैं आपको दो, जो कि किसी से भी जॉइंट नहीं है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। और देखो पीछे वाला है, देखो वो जो हमने आपको भी पढ़ा है ना बैकबोन, वो बैकबोन देखो पीछे है, उसी से कनेक्टेड हमारा ये जो है ना 24 जो है ना कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स अरेंज इन 12 पेयर्स। ये ना 12 जोड़े होते हैं, 12 जोड़े मतलब समझ रहे हो ना 24। हाँ अब आ जाओ शोल्डर बोन। शोल्डर बोन देखो ये वाला, ठीक है। अब ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। द शोल्डर बोन इज फॉर्म्ड बाय द कोलार बोन एंड द शोल्डर ब्लेड। द कोलार बोन इज ए लॉन्ग कर्व्ड बोन। कोलार बोन कीप्स द शोल्डर्स अपार्ट। द शोल्डर ब्लेड इज ए लार्ज एंड फ्लैट रेंगुलर बोन विच अटैच आर्म टू बॉडी। ठीक है, ये देख लो, ये मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, देखो कोलार बोन है ऊपर, तुम ध्यान से देखना, और जब आपने बॉडी को ऐसे टच करोगे तो यू कम टू नो कि ये सही में वो बोन कहाँ पे है ना। रोटेट कफ है, बाइसेप टेंडन, ठीक है, और मैंने बताया ना आपको ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस और अल्ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हिप बोन है ना। द हिप बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। 3 बोन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, द हिप बोन मैं यहाँ करता हूँ, दिखाई दे रहा है। The hip bone together with the last two part of the backbone from a large body ball, it is called the pelvis. It is the lowest and strongest part on which sit on. The thigh bones are attached to the hip bones, है ना। तो ये है तुम्हारा बोन्स का, द बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग। अब देखो हाथ और पैर के बोन्स का है। द बोन्स ऑफ हैंड एंड लेग corresponds closely to each other. The hand comprises the upper arm, forearm, wrist, palm and finger. The upper arm has one long and strong bone. In the forearm there are 2 long bones. The wrist is made of 8 small bones. The palm is composed of 5 slightly longer bones. There are 3 small bones in each finger. The thumb has only 2 bones, है ना, thumb में सिर्फ 2 बोन होते हैं। The legs include the thigh, lower leg, ankle, feet and the toe. The thigh bone is the strongest and longest bone in the body. The lower leg is composed of 2 bones called the tibia and fibula. Tibia and fibula, है ना। ये देखो लेग के बोन हैं और ये हैं हैंड के बोन। मैं तुमको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है, देखते जितना बड़ा हो सकता है बड़ा करता हूँ। अब देखो इसमें कैसा कि ये हैंड वाला बोन है, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो स्केपुला है ना, ह्यूमरस, फिर देखो अल्नर नर्व्स। अब इसी में नर्व्स भी आते हैं, मेडिकल, इपोकोडाइल, रेडियस, अल्ना। देखो ये आगे वाले जो बोन्स होते हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस, है ना, और पीछे वाले को बोलते हैं अल्ना। फिर क्या है, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। हमारे हाथ में भी हड्डियाँ होती हैं, देखो उंगली है तो उंगली में देखो कितनी हड्डी है, अंगूठे में 2 होती है, इसमें 3 होती है, देखो 1 नहीं 3 देखो 1 2 3। अब इस तरीके से आपको स्टडी करना पड़ेगा। देखो लेग में कैसा हेड है, लिगस है, पोबिस है, थाई बोन है, थाई बोन तो मतलब भाई थाई बोन है ये, है ना, फेबुला है, टाइबिला है। अब ये क्या है, ये सब तुमको बनाना है और समझना है। और डायग्राम बनाने में कोई बड़ी, देखो कैसा कि तुमको सेम टू सेम नहीं बनाना है, तुमको ये समझते हुए बनाना है कि ये जो है मैं बना रहा हूँ इसलिए कि मेरे को अंडरस्टैंड करना है कि बॉडी में ये पार्ट कहाँ पे होता है। व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम, कई बार क्या है, पेरेंट्स ही बात करते हैं, अरे आपने तो ये इतना हार्ड डायग्राम दे दिया, इतना हार्ड डायग्राम दे दिया। हार्ड नहीं दिया, यू हैव टू ट्राई, आपको ट्राई करना है, आपको सेम टू सेम नहीं बनाना है। डायग्राम में तो नंबर कटेंगे, 10 नंबर का डायग्राम होगा तो 8 ही आएगा, 9 ही आएगा। ये दिस इज नंबर लेने के लिए ये नहीं होता है, नंबर लेने के लिए होता है फिल इन द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। डायग्राम इज नॉट द क्वेश्चंस वेयर यू गेट ए 10 to 10 मार्क्स, राइट।
तो आप लोगों ने अभी भी जो एग्जाम किया है उसमें नो वन हैज़ गॉट 10 to 10, क्योंकि क्या होता है डायग्राम में क्या है, आप कभी पार्ट्स का नाम नहीं लिखते हो, आप बनाते हो। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं बोलूँ जैसे ह्यूमरस है, तब ह्यूमरस अपने हिसाब से ही मोटा होगा, आप इतना मोटा बना दोगे तो वो खराब हो जाएगा। तो किसका क्या स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, चलो अभी आगे आते हैं। द लेग इंक्लूड द, चलो ये मैंने कर लिया था। देखो हैं ताइबा एंड फ्यूबा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना आपको। अब जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स का हम देखते हैं, जिसके लिए पूरा चैप्टर्स है कि जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इन द स्केलेटन इज कॉल्ड ए जॉइंट। आप सबको पता है कि जॉइंट हम किसको बोलते हैं। द पॉइंट आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू विदस्टैंड जर्क। The ends of the bones are covered with soft cartilage. It acts as a shock absorber and reduce friction between the bones. The bones are held together at the joint by strong stretch bands called ligaments. There are many joints in the body. They are of three types depending on the type of movement. They are immovable, slightly movable and freely movable. अब देखो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है immovable, कई बोन्स ऐसे होते हैं जो मूवमेंट में नहीं आते हैं। ठीक है, अब थाई के नीचे का बोन है कहाँ मूवमेंट में आता है आपका। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल, और कुछ बोन होते हैं जो हल्का हल्का मूवमेंट में आते रहते हैं। एंड फ्रीली मूवेबल, और कुछ बोन है जो फ्रीली मूवमेंट करते हैं। जैसे आपका सोल्जर है, उसको आप जितना ऐसा ऐसा करना चाहोगे वो मूवमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या है कि विल गो फॉर 2 पार्ट्स इन दिस वीडियो। ठीक है, तो हम यहीं पे इसको रोकेंगे, बट आप सबको बता दें कि आप एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से ध्यान से समझना है इसके अंदर, है ना। दिस इज़ नॉट ए पीस ऑफ केक, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। चलो बाय, थैंक यू।